Is the screen visible to you? Okay, is the screen visible? Okay. So what we were doing, so थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, डोंट वरी, और थोड़ा सा इलैबोरेट भी है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एफ बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन, x1 x2 x3 xn ये सब किस में बिलोंग कर रहे हैं, a कॉमा b के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n ये नॉन जीरो रियल नंबर्स है हैविंग द सेम साइन। सेम ट्रीटमेंट तुम नेगेटिव के लिए भी कर सकते हो, बिकॉज अल्फा आई अगर नेगेटिव हुआ तो समेशन अल्फा आई भी नेगेटिव होगा, और अल्फा आई डिवाइड बाय अल्फा आई पॉजिटिव। Harshit, am I audible? Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बोल रहा है और सच दैट एफ सी, और सी यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी को, एफ सी इंटू समेशन अल्फा आई इज इक्वल टू समेशन आई से लेकर एन अल्फा आई एफ एक्स आई, ये दिख रहा है ये, देन देयर एग्जिस्ट सम जीटा बिलोंग्स टू ए कॉमा बी such that f zeta is equal to 1 upon n fx1 fx2 dash 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 fx। ओके, अब देखो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या। अब तक जो हमने समझा उसमें ये था, if alpha is positive, then alpha, which is the sum of alpha is, this will be positive. So I can write that my alpha I upon alpha would be positive. Let f belong is defined from closed interval a comma b to r be a continuous function. अगर ये continuous function है, then it will always attain maximum and minimum and maximum. Sorry, and if it attains minimum and maximum, so for some values it will always attain some minimum and maximum value. Here I've told you by example also. Let's say if I take fx equal to x, and if I take a bounded closed bounded interval instead of a comma b, I'm simply taking minus 1 comma 1. So it will attain the maximum at 1 and it will attain minimum at minus 1. If I take x square, then it will attain the maximum at f2 and minimum at f0. So there would be some y and z belongs to this particular interval where it attains maximum minimum. And similarly, if I can write here that fx would lie between fy and fz, where fz is the maximum value of function, fy is the minimum value of function, and these y and z will come somewhere from a comma b only. Is that clear? And this x will also come from a comma b. So this is true for all x. Since it is true for all x, it should be true for all x lying between a comma b. So it is just not that x lies in general. I would write that x1, x2, x3, xn, and all these xi's are lying between a comma b only. Is that clear? So your fxi would lie between minimum and maximum only. Is that clear or not clear? This is from the extreme value theorem of a extreme value theorem for the continuous function that I told you. I think in 2 or 3 lectures before. Yes, I don't know. Couple of lectures before. Is that fine, हर्षित? यहाँ तक समझ में आया बेटा? हाँ, अब आप क्या करेंगे? You just multiply fi alpha I upon alpha on both sides. So I've multiplied this. Take a sum over it. So what you've got? You've got what? You've simply got that. अब थोड़ा सोचो. यहाँ तक क्लियर हो गया? I don't think यहाँ तक कोई दिक्कत है. इसका मतलब क्या होगा? हमने हाँ, खुद हाँ ने सर। क्या कहा था कि समेशन अल्फा आई किसके बराबर था? अल्फा के बराबर। तो इसका मतलब समेशन अल्फा आई अपॉन अल्फा भी कर लोगे तो आंसर क्या आएगा? बन ही आएगा इधर से। सो इट इम्प्लाइज व्हाट? यहाँ पे आ जाएगा एफ वाई, पर यहाँ ध्यान रखना, यहाँ अल्फा आई के साथ यहाँ एफ एक्स आई और, समझ लो, एफ एक्स आई मतलब ये समझ पा रहे हो? ये क्या लिखा है? ये लिखा है अल्फा वन एफ एक्स वन प्लस अल्फा टू, मैं एक बार लिख के बता रहा हूँ तुमको, एफ एक्स टू डैश 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 अल्फा एन एफ एक्स एन। यहाँ पे तुम नहीं लिख सकते इसको, डिवाइडेड बाय होल डिवाइड बाय अल्फा, और यहाँ पे क्या आएगा? एफ से। इज दैट क्लियर? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर? अब मुझे बताओ फंक्शन एफ कैसा है? कंटिन्यूअस। फंक्शन एफ कैसा है बेटा? कंटिन्यूअस। हाँ, हाँ सर। इसका मतलब क्या हो गया? हर पॉइंट पे वैल्यू है। है ना? इसका मतलब एफ वाई से लेकर एफ जेड के बीच में सारी वैल्यूज अटेन करेगा फंक्शन बाय हाँ सर। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। एफ विल अटेन all values
between fi and fz, and since it attains all the values between fi and fz, so it will attain somewhere this value also, because it lies between somewhere, I don't know where, but it will lie between. So obviously it lies intermediate to fi and fz, so it will attain this value also somewhere. So let that point be zeta. So let zeta be a point such that f zeta is equal to what? F zeta is equal to what? It is equal to alpha 1 fx1 plus alpha 2. समझ पा रहे हो मेरी बात बेटा? ये जो वैल्यू है ये इसके इंटरमीडिएट ही तो है बेटा, एफ आई और एफ जेड के बीच में। तो कोई ना कोई जीटा पे तो वैल्यू अटेन करेगा ही करेगा ये वाली, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर बेटा? नहीं क्लियर तो प्लीज पूछ लो। नहीं नहीं सर, समझ में आ गया। ये समझ में आ गया? गुड। सो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एफ जीटा इंटू वॉट, आई थिंक अल्फा, एफ जीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2, या ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? शो दैट, क्या बोला जा रहा है? शो दैट देयर एग्जिस्ट जीटा इज इक्वल्स टू ऑल दीज थिंग्स डिवाइड बाय 1 अपॉन एन। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, हमने ये तो प्रूव कर दिया, ये जनरल प्रूफ कर दिया मैंने। क्या किया बेटा? आई हैव प्रूव्ड इट इन जनरल। हाँ सर। आई थिंक समवेयर कुछ मिस्टेक लिखी क्वेश्चन। अच्छा, ये शो दैट देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट एफ सी समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर एन अल्फा आई इज इक्वल टू दिस। पहला तो ये था, एंड देन ऑल्सो प्रूव दिस। सॉरी, दिस इज शो दैट ओनली ना, मैं वही कर, दिस इज शो दैट ओनली। ये चीज शो दैट में ही है, ठीक है। तो एक तो ये शो करनी है हमको, पॉइंट नंबर 1। और अगर ये शो करो तो ये भी शो करो। देखो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या लिखा है। तो देखो ध्यान से देखो, हम क्या शो कर पाए? हम ये शो कर पाए, या एफ जीटा बोलो चाहे एफ सी बोलो, चलो अगर क्वेश्चन को देखना है तो लेट अस से दैट एग्जिस्ट एफ सी इंस्टेड ऑफ जीटा। समझ पा रहे हो? बस मैंने सिंबल चेंज कर दिया हमने क्वेश्चन को देखते हुए। तो यहाँ पे देखो एफ सी इंटू अल्फा विल बी इक्वल्स व्हाट? इट विल बी अल्फा 1 एफ एक्स 1 प्लस अल्फा 2 एफ एक्स 2 डैश 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 अल्फा एन एफ एक्स। मानते हो बेटा? Or in other words, what हाँ I'll सर। write, I will write this summation alpha I is equal to summation alpha I into fx. यही प्रूव करना था। Show that there exists some c belongs to a comma b such that fc into summation alpha I is equal to summation I alpha I into f of x है। Is that clear? मैं तो ध्यान से पढ़ ही नहीं पाई। ये शो दैट है, कैपिटल शो दैट, दिस इज सच दैट, ठीक है। सो just excuse me for the initial mistake that I made. This is what we had to prove. So this is what we've got also. Is that clear, Harshit? समझ में आई बात? हाँ सर। ओके। और स्पेसिफिकली थोड़ा देखो ध्यान से, ये प्रूव करना है। देन ऑल्सो प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट सम जीटा बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट एफ जीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। ये क्या है? तुम थोड़ा ध्यान से देखो, ये अरिथमेटिक मीन है, एन संख्याओं का अरिथमेटिक मीन। इफ देयर आर टू नंबर्स, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन? a plus b by 2। इफ देयर आर n numbers a1 a2 a3 an, then the arithmetic mean is a1 plus a2 plus a3 dash 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 upon n। इससे जस्ट पहले देखो, मिड वैल्यू कहीं ना कहीं तो अटेन करेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ सर। सब में हाँ मत बोलो, मुझे पता है इट इज डिफिकल्ट। देखो, लेट अस से लेट अस से ये जो आपने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन लिया, ये अल्टीमेटली क्या था? अल्फा 2 अल्फा 3 डैश 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 अल्फा एन पॉजिटिव नंबर्स थे, याद करो। देखो यही लिखा था, हाँ हाँ सर। कहाँ गया? it ठीक है, it was ओके। it were non-zero positive real number having the same sign. So if I take हाँ all these numbers as equal, so if I take alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to alpha 3 dash 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 equal to alpha n, ये सारे पॉजिटिव रहेंगे, तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? सोचो, तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ सी इंटू समेशन अल्फा ही कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू एन इंटू अल्फा 1
अगर ये सारी वैल्यूज बेटा इक्वल ले लोगे, या फिर चलो ऐसा मत समझो, ऐसा हाँ समझो, हाँ, नहीं नहीं, समझ में आ गया, समझ में आ गया। समझ में आ गया। लेट्स से सारी वैल्यूज हाँ इक्वल टू ले लो 1/n, लो और बढ़िया, सारी वैल्यूज इक्वल टू 1/n ले लो, तो काम बन जाएगा तुम्हारा। हाँ हाँ सर। तो समेशन अल्फा ही कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा? अगर ये सारी वैल्यू 1/n ले लोगे तो ऐड कर दोगे n टाइम्स, तो क्या 1/n एडेड n टाइम्स में 1 नहीं दे देगा? इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू समेशन एफ एक्स आई डिवाइडेड बाय n, इजंट इट? अल्फा आई बेटा अगर आप 1/n ले लोगे तो समेशन 1/n इंटू एफ ऑफ एक्स आई, अगर ये सारी वैल्यूज बराबर ले, इफ यू टेक ऑल दीज वैल्यूज एज इक्वल, समझ पा रहे हो मेरी बात? देखो ये इक्वल ले ली, पर मैं मान लेता हूँ 1/n, सारी इक्वल ले लो 1/n, तो समेशन अल्फा ही कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा? सोचो, तो हाँ ये सर। वैल्यू तो 1 होगी। So fc into 1 will be equal to summation fxi upon n, or in other words there exists some zeta, बोल लो इसको चाहो तो fc बोल लो, जैसा जैसा बोलना चाहो, वो तो वेरिएबल्स का मतलब है। So there exists some zeta belongs to a comma b such that f zeta is equal to 1, it is equal to 1/n summation fxi का मतलब क्या है, f of x1 plus f of x2 plus f of x3 dash dash dash। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? सो ऑलवेज रिमेंबर कि अरिथमेटिक मीन कहीं ना कहीं तो अटेंड करेगा बीच में। मीन का मतलब क्या होता है, बीच। इज दैट क्लियर, नॉट क्लियर बेटा? हाँ सर, समझ में आ गया। पक्का, गुड। चलो अब एक ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन तुम थोड़ा सोच, इजी क्वेश्चन दूंगा, मतलब थोड़ा मैं डिफिकल्ट दे भी दिया। अगर मैं पूछूं तुमसे, तुम्हारे कोचिंग में कराया होगा ना टॉपिक, कैसे कराया, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी इतना डिटेल कराया नहीं कराया? सर एक सेकंड में देख के बताता हूँ। है ना, तुम देख आराम से, और एक बार मुझे देख हाँ के तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे कि ये कितना डिटेल में करा, बिकॉज हम लोग इतना डिटेल, मैं इतना डिटेल करा रहा हूँ, पता चला इतना डिटेल आता ही नो एग्जाम को। तुम एक क्वेश्चन करो चलो इस बारे, लेट एफ बी डिफाइंड फ्रॉम, ये लास्ट क्वेश्चन ठीक है, 0,1 to r be continuous such that f0 is equal to f1, show that there exists x1 comma x2 belongs to 0,1 such that, ये such that लिख देते हैं, such that fx1 is equal to fx2 and x1 minus x2 is equal to 1/, हर्षित आर यू देयर? समझ? हाँ हाँ सर, मैं करेंगे। चलो मैं करता हूँ। So, थोड़ा ध्यान से देखोगे, x1 माइनस x2 को तो हाफ मतलब क्या है, तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि x1 इज इक्वल टू x2 प्लस हाफ। तो तुम्हें क्या प्रूव करना था, यू वांट टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट सम x1 x2 such that fx1 is equal to f of x1 plus half। ध्यान से देखो, अगर ये कह रहा है कि x fx1 fx2 के बराबर हो जाए एंड x1 minus x2 भी हाफ के बराबर हो जाए, इट implies what, you can also write that, you can also write that x1 is equal to x2 plus half, isn't it? So if x1 is equal to x2 plus half, then if you write here x2 plus half, what does it imply? That if f is continuous, given that f0 is equal to f1, then we have to show that there exists some x1 x2 such that f of x1 plus half is equal to f of x1. So instead of x2 you can also write, instead of x1 you can also write x2 plus half. So instead of x1 you can write x2 plus half, that implies, समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ हाँ सर। देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे क्या लिखा, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, राइट? और ये साथ में दे रखा है कि एन एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू हाफ। तो व्हाट यू हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वी हैव टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट सम एक्स वन, और यार जो भी तुम्हें कहने का मतलब हो, मन हो, देयर एग्जिस्ट सम, लेट्स से तुम्हारी भाषा में बोले तो एक्स टू, सच दैट एफ ऑफ एक्स वन की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स टू प्लस हाफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। तो ये सेम क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, ये सोनू हर्षित। देखो मैंने सिंपली x1 की जगह क्या लिखा बेटा, x1 इज इक्वल टू x2 प्लस हाफ,
हाँ हाँ तो नहीं तो समझ आ गया। समझ गए ना? सो देखो, जब हाँ भी ऐसा कुछ आए तो क्या करोगे? कंस्ट्रक्ट अ न्यू फंक्शन। और फंक्शन क्या कंस्ट्रक्ट किया, इसको देखते देखे क्या कंस्ट्रक्ट कर लिया मैंने? एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ माइनस एफ ऑफ एक्स। कोई दिक्कत? इसको देखा देख आपने क्या ले लिया फंक्शन को? एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ माइनस एफ एक्स। इज दैट क्लियर? हर्षित, यस और नो? तो समझ आ गया आगे। इज इट नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन? कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस अगेन अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हाँ हाँ सर। नाउ सी, गिवन दैट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, तो मैं क्या करता हूँ? लेट अस फर्स्ट फाइंड व्हाट इज जी ऑफ जीरो। व्हाट इज जी ऑफ जीरो? इज दैट फाइन? हाँ हाँ एंड व्हाट वुड बी जी ऑफ वन बाई टू? है ना, एक बार जी ऑफ वन बाई टू निकालने की कोशिश करते हैं। व्हाट वुड बी जी ऑफ वन बाई टू? इट वुड बी एफ ऑफ एफ ऑफ वन वन माइनस एफ माइनस ऑफ एफ वन ऑफ। बाई टू। इज दैट क्लियर बेटा? हाँ हाँ अच्छा, गिवन दैट क्या दे रखा था? दे रखा था, इट वाज गिवन दैट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ वन। So can I not write it in the terms f of 1 minus f of half? अगर f of 1 f of 0 है तो f of 1 की जगह मैंने f of 0 लिख दिया। कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर समझ आ गया। है ना पक्का? हाँ अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव नहीं होगा, हाँ सर। और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव नहीं होगा। समझ पा रहे हो? देखो, f ऑफ हाफ माइनस एफ ऑफ जीरो अगर पॉजिटिव है तो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ हाफ नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। और दो अलग केसेस तो बनेंगे जो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया। इफ एफ ऑफ हाफ इज इक्वल टू हाफ, अगेन देयर इज नथिंग टू प्रूव। क्यों नथिंग टू प्रूव? क्योंकि देखो, अगर एफ ऑफ हाफ जीरो के बराबर हो गया तो इट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस हाफ इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो इसका मतलब सी इक्वल टू जीरो आ गया यहाँ से। ये तो सी जीरो कह दो या एक्स टू इक्वल टू जीरो कह दो, एक ही बात होगी। और अगर एफ ऑफ जीरो, और अगर ये वाला आ गया तो एफ ऑफ वन अगर एफ ऑफ हाफ के बराबर आ जाए तब तो कोई बात ही नहीं है। मतलब अगर जी ऑफ हाफ जीरो के बराबर आ जाए, ये भी तो हो सकता है ये जीरो आ जाए। अगर जीरो आ जाए तो कोई बात प्रूव करने की रही नहीं गई। यहाँ पे सिंपली कह सकते हो एफ ऑफ हाफ प्लस एफ ऑफ हाफ इज इक्वल टू सिंपली एफ ऑफ हाफ। सो यहाँ पर एक्स टू तुम्हारा किसके बराबर आता है? हाफ। सो आई एम नॉट कंसिडरिंग दीज टू केसेस, बट otherwise what I can say, that if this is positive then this is negative, and if this is negative then this will be positive. Is that clear? देख लो, f of minus f zero अगर positive है then f zero minus f of negative होगा। अगर f of minus f zero negative है तो f zero minus f of positive होगा। Is that clear? हाँ सर। In other words I can say g of zero and g of half will be of contrary sign। ठीक है, will be of opposite sign। मानते हो बेटा? And since they're of contrary sign, it implies that there will exist some x2 such that gx2 would be 0. And what does it imply? It implies there would exist some x2 such that f of x2 plus half minus f of x2 would be equal to what? 0. Or in other words, f of x2 plus half is equal to f of x2. Is that clear? Or you take this as x1, or there exists some x1 and x2 both belongs to some 0 comma 1 only, such that because this x2 would also belong to what? 0 comma 1 only ना। देखो, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इसके बीच में आना चाहिए। 0 comma हाफ के बीच में आ रहा है, मतलब 0 comma 1 के बीच में आ रहा होगा x2। बात समझ में आई बेटा? ये जो x2 वो किसके बीच में आएगा? 0 और हाफ के बीच में तो आएगा। और अगर 0 और हाफ के बीच में आ रहा है तो पक्की बात है 0 comma 1 के बीच में होगा कहीं ना कहीं। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर बेटा? हाँ सर समझ आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? सो f x2 would belong to 0 comma 1 such that f of x2 plus half would be equals to f of x2, or there would exist some x1 x2 belongs to 0 comma 1 such that f of x1 is equal to f of x2। देखो, x2 plus half को मैंने क्या लिख दिया? x1 and x1 minus x2 is equal to 1। खत्म। x1 को क्या लिख दिया? x2 plus half।
ये लिखना या ये लिखना एक बात नहीं होगी, यही प्रूव करना था। There exists some x1 and x2 belongs to 0, 1 such that f of x1 is equal to f of x2 and x1 minus x2 equal to, ये प्रूव करना था, कर दिए। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा बात? समझ में आ गया, समझ में आ गया। गुड इनफ, यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ ठीक है, सो वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन फ्रॉम हियर ओनली। थोड़ा सा एक और ट्रिकी क्वेश्चन है, बट वील डू इट मतलब डे आफ्टर टुमारो। ओके, इज दैट फाइन? हाँ सर, समझ में। ओके ओके। थैंक यू।